ہے کل ہمارے 20 جوانوں کو شہید کر چکا ہے بھی خبر کرتے ہیں۔ اور جموں کشمیر کے حوالے سے قضیہ زمین برسر زمین کی بات کریں تو سیکریٹریٹ کی بات بھی ضرور کی جاتی ہے۔ سیکریٹریٹ پچھلے قریباً 2 مہینوں سے چرچا میں تھا، کشمیر میں بحث کی جا رہی تھی، پوچھا جا رہا تھا کہ آخر یہ ہماری سرکار ہے تو کب کشمیر آئے گی، کب بیوروکریٹ کشمیر آئیں گے، کب یہ سب لوگ یہاں آ کر یہاں کے زمینی حقائق کو سمجھیں گے، پرکھیں گے۔ لیکن انتظار ٹلتا گیا، تاہم اس انتظار میں آج ایک مہر لگی اور یہ مہر جی اے ڈی کی لگی ہے۔ سرکار کا حکمنامہ آرڈر نمبر 649-JNK-GOD آف 2020 بتاریخ 17/6 یعنی آج کی تاریخ کا جی اے ڈی کا آرڈر، اور اس آرڈر کے مطابق سیکریٹریٹ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آدھا سیکریٹریٹ یعنی 36 میں سے 18 دفاتر کشمیر میں رہیں گے، 18 جموں میں رہیں گے۔ شروعات ہوئی ہے دربار منہ کے بریک ڈاؤن کی، یعنی 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی، اور اسی تقسیم کے حوالے سے جو کشمیر میں محکمے آئے ہیں ذرا ان کا بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ کشمیر میں سول ایویشن کا محکمہ دیا ہے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ کلچر بھی کشمیر میں رہے گا، اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ بھی کشمیر میں رہے گا، ریونیو بھی یہیں رہے گا، فلوریکلچر بھی یہیں رہے گا، جی اے ڈی اور ہارٹی کلچر بھی یہیں پہ رہے گا، ایجوکیشن اور ہاسپٹلٹی بھی یہاں پر رہے گا، انڈسٹری، کامرس، آئی ٹی یہ تینوں ڈپارٹمنٹ کشمیر میں رہیں گے، لا، لیبر، امپلائمنٹ یہ بھی یہیں رہے گا، پی ڈبلیو ڈی اور سوشل ویلفیئر بھی یہیں رہے گا، سکل ڈیولپمنٹ بھی یہیں رہے گا، ٹورزم بھی کشمیر کے حصے میں آیا ہے، یوتھ سروسز بھی کشمیر کے لیے ہے، اور ایگریکلچر کے لیے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ جموں میں بھی رہے گا، کشمیر میں بھی رہے گا۔ اور اب آپ کو بتاتے چلے کہ جموں میں سیکریٹریٹ کا کون کون سا پرزہ رہے گا۔ تو سب سے پہلے جس کی کشمیر میں ضرورت ہے اس وقت، جس کی مہاماری چل رہی ہے، وہ ہے کووڈ، اور کووڈ کے خلاف صحت محکمہ لڑتا تھا، صحت محکمہ لڑ رہا ہے، لیکن صحت ڈپارٹمنٹ یعنی ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن اس کو جموں میں رکھا گیا ہے، اینیمل ہسبنڈری کو بھی جموں میں ہی رکھا گیا ہے، اے آر آئی ٹریننگ اس کو بھی جموں میں رکھا گیا ہے، اور کوآپریٹیوز جموں میں ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اس وقت کشمیر میں ضرورت تھی، اس کو بھی جموں میں رکھا گیا ہے، الیکشن بھی جموں میں رکھا گیا ہے، سی اے پی ڈی یعنی امور صارفین بھی جموں میں رکھا گیا ہے، فارسٹ بھی جموں میں ہے، ہوم بھی جموں میں رہے گا، ہاؤسنگ اینڈ اربن لوکل باڈیز بھی جموں میں رہے گا، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی جموں میں رہے گا، انفارمیشن خود جموں میں رہے گا، پی ایچ ای یعنی جل شکتی بورڈ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی جموں میں رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ بھی جموں میں، پاور بھی جموں کو دیا گیا ہے، ریونیو بھی جموں میں رہے گا، رورل ڈیولپمنٹ بھی جموں میں، ٹرانسپورٹ بھی جموں میں، ٹرائبل افیئرز بھی جموں میں۔ تو کشمیر کے کھاتے میں کیا کچھ آیا ذرا غور کریے۔ سول ایویشن آئی ہے یعنی ہوا بازی، کشمیریوں کو ہوائی کرتب دکھانے ہوں گے ہوا بازی کرتے ہوئے، سیکریٹریٹ کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے، اسٹیٹس کشمیر کو دیا گیا ہے، یعنی جو امپورٹنٹ محکمے۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہیلتھ کی بات آتی ہے۔ ان حالات میں کشمیر میں آج بھی ایک اور موت کووڈ سے ہوئی ہے، اور کشمیر میں آج بھی سوال سول سیکریٹریٹ میں جب یہ آرڈر ہم لے رہے تھے تو ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ سرکار تک یہ بات کوئی پہنچائے اور پوچھے سرکار سے کہ جموں میں آج ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ہیلتھ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو کشمیر میں کام کرنا ہے۔ یہاں پہ زمینی حقائق اور حالات خراب ہیں کووڈ کے حوالے سے، اور دوسرے جو بڑے ڈپارٹمنٹ جنہیں ہائی پروفائل ڈپارٹمنٹ میں کہا جاتا ہے، خاص طور پہ جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، الیکشن ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، فارسٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ اینڈ اربن لوکل باڈیز ہے، انفارمیشن ہے، پی ایچ ای ہے، ریونیو ہے، رورل ڈیولپمنٹ ہے، یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جنہیں ہائی پروفائل ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو آج کشمیری یہ ضرور شہر میں کہہ رہے تھے کہ جموں کے ساتھ تو سب کچھ ہوتا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ اور پھر آج کے اس سیکریٹریٹ کے بریک ڈاؤن کرنے پہ یعنی 2 سے کرنے پہ لوگ پھر سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا سرکار ہی جموں ورسز کشمیر کر رہی ہے، ورنہ کووڈ تو ہے، لیکن کووڈ کے حوالے سے اب تک سیکریٹریٹ جموں میں سرکار کے پریشر بنایا گیا، سرکار نے منہ کیا، لیکن پھر بھی وہاں کہیں نہ کہیں ٹچا ضرور رکھ دیا، اور ٹچا رکھتے ہوئے جموں میں آدھا کشمیر میں آدھا تیرا آدھا میرا کرتے ہوئے آگے کے لیے کوئی راہ تو ہموار نہیں کی ہے۔ یہ کشمیر میں بات آج پوچھی جا رہی تھی، سرکار کی اس پالیسی پر سوال کھڑا کیے جاتے تھے، اور عام کشمیری سرکار کی اس پالیسی کو دوغلی پالیسی کہہ رہے تھے۔ یہ پالیسی سرکار کی، لیکن جب بات سیکریٹریٹ کی آتی ہے اور آج کے اس کووڈ کے حوالے سے آتی ہے تو آج ایک اور موت ہوئی ہے کشمیر میں کووڈ کے حوالے سے۔ ایک ساؤتھ کشمیر کی ایک اور شخص کی موت ہوئی ہے، اور سری نگر کے ہسپتال میں وہ سی او پی ڈی یعنی پلمونری انفیکشن، چیسٹ انفیکشن سے مبتلا تھا اور ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، لیکن کووڈ کی لڑائی لڑتے لڑتے زندگی کی جنگ ہار بیٹھا۔ اور سری نگر میں اسی معاملے کو لے کر جہاں کووڈ کی بات کی جاتی ہے وہاں کوارنٹین سینٹرز کے حوالے سے سوالات کا ایک بڑا پہرا یا گہرا کھڑا
किया जाता है। और श्रीनगर के बडगाम के इलाके में, हुमामा के इलाके में, बडगाम जिले के हुमामा के इलाके में क्वारंटीन सेंटर के बाहर का आज का मंजर कुछ इस तरह का था। हम यहाँ हुमामा में हूँ। हमारा पेशेंट जो यहाँ था वो प्रेग्नेंट थी, सुबह से वो सीरियस थी। 6 बार उनके पास गए, उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, उसका बच्चा पेट पे ही मर गया, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, कोई सामने नहीं आया। मैं आ गई, मैंने उसको उठाया और इस एम्बुलेंस में उसको रखी। ये कैसा कानून है, कैसा हिसाब है ये? अच्छा, डॉक्टर को आपने फोन किया था? डॉक्टर को भी फोन किया, उन्होंने कहा हम क्या करेंगे? आया क्यों नहीं कोई? कोई नहीं आया। आएंगे एम्बुलेंस आ रही है लेकिन नहीं आ रहे थे, सिर्फ ड्राइवर भेजा। डॉक्टर को नहीं भेजा, एम्बुलेंस में डॉक्टर को नहीं भेजा। आप क्या है यहाँ का? आप इंचार्ज हो यहाँ का? हाँ, इंचार्ज यहाँ पे। तो आपने आगे फोन किया? हाँ। तो क्या बोला उन लोगों ने? 9 बजे उन्होंने बीएमओ को फोन किया, बोला अभी एम्बुलेंस भेज रहे हैं, अभी एम्बुलेंस भेज रहे हैं, लेकिन देर से आई, तब तक बच्चा इसका गिर चुका। ये श्रीनगर के हुमामा के इलाके में क्वारंटीन सेंटर का हाल अहवाल। एक खातून जो कोविड के मामले को लेकर इस क्वारंटीन सेंटर में थी, दर्द ज़ह में मुब्तला होती है, लेकिन उससे इमदाद मेडिकल एड जो होती है, होनी चाहिए थी, वो वक्त पे नहीं पहुंचती है और बच्चा डिलीवर हो जाता है। बच्चे की मौत हो जाती है और उसके बाद इस खातून को श्रीनगर के ललदेद अस्पताल पहुंचाया गया है। हमने कुछ देर पहले ललदेद अस्पताल के अथॉरिटी से बात की है, वहां मालूम हुआ है कि जच्चा यानी खातून की तबीयत अब संभल चुकी है, लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स पर सवाल बहुत पहले से उठ रहे थे और सवाल यही उठ रहे थे कि यहाँ नेग्लिजेंस होती है। यहाँ जिन लोगों को एक बार दाखिल किया जाता है उन्हें बिल्कुल उसी तरह से उन्हीं सेंटरों में दाखिल किया जाता है जिन्हें नो मैनेज लैंड सेंटर्स कहा जा सकता है, यानी उनका कोई पुरसानिहाल नहीं होता है। और पुरसानिहाल न होने की वजह से क्वारंटीन सेंटर्स की इफादियत पर सवाल उठ रहे थे, लोग पूछ रहे थे और कहीं कहीं इन सवालात को शक के दायरे में खड़ा भी, इस सरकार के फैसले को खड़ा भी किया जाता है। लेकिन हम आपको बटमालू के एक शख्स की इसी कोविड के हवाले से, इसी क्वारंटीन के हवाले से एक कॉल सुनाते हैं जो उन्होंने हमें कॉल की और बताया कि उसके साथ क्या कुछ हाल किया गया। सब कुछ उन्होंने हमें बताया, हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, अरबाब इक़दार तक पहुंचा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जनाब अर्ज छूं बसान दोबी महला बटमालू जनाब ये अली मोहम्मद मीर ओत्र तमिस बिचारस बाथरूमस थोप आमुत, तमिस बाथरूम सफाई करा अच्छन तमिस अथ बेचनस अथ रग जनाब पत गो सह जनाब हेडवन पे कोरुक रेफर सोल अमिस टेस्ट करान दपान यह हसा पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव पे पगह कित योर डॉक्टर टीम तम फोटो वोटो तुलान मकानस हुत यथ बस कत्या हु क्या यह क्या पे जनाब डॉक्टर बे गंट गि दपान नसा यह हसा नेगेटिव। आज वो तमिस 4 दह जनाब यथस सोरिस मज न तमिस गरकन तौर त्रावान, न तमिस सर्जरी करान, न जनाब तमिस टेब दिवान, सिर्फ वन 4 दोहन वोत डॉक्टर साहब वन थिएटर हसा गल चा करो सर्जरी। तुम गुजारिश करान जनाब मेहरबानी कर वात आला हुकामन ताम यह कत यह क्या दलील दोबी महला बटमालू बहुत हमसाय अमिस जनाब खानदार यमिस ओत्र डिलवरी गम बचपन बे लड़की अमिस महल वाल वो ये मदद करान कह चीज दिवान अनित कर तो यह बिचार सर्रा पेमुत यस मगर खुदा रख तुम सोचतो यह कुछ अंधेर नगरिया जनाब ये शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, यह अरबाब इक़दार तक बात पहुंचाने की गुजारिश। लेकिन इस बात के साथ साथ आपको बताते चले कि सियासत भी कल हमें देखी और हमने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के हवाले से सियासत के दौरान ये भी देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 11 में से 8 MLAs ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया, लेकिन शाम गए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जारी बयान हुआ उसमें 4 पे ही कांच गिराई गई, 4 को ही पार्टी से बर्खास्त किया गया, 2 जडीबल के, 2 बटमालू के। लेकिन
श्रीनगर के खानियार इलाके के जिन 4 कॉर्पोरेटरों ने इस सारे मामले में पार्टी से बगावत की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बात पते की, और इसी पते की बात का पता करते हुए हम पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के सामने, और हमने मोहम्मद अकबर लॉन से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि सिर्फ 4 पे काज गिरी, बाकी 4 प्यारे कैसे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, डिप्टी मेयर का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं है या है, ये तो उसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब उसने आज खुद पार्टी के हुक्म की तामील नहीं की, पार्टी के हुक्म की, तो लिहाजा जाहिर सी बात है कि वो इसके खिलाफ था, लिहाजा वो उन्होंने इसके खिलाफ ये अपना रद्द अमल जाहिर किया। मतलब आप कहते हैं कि उन्होंने पार्टी का मंशूर नहीं माना, Yes. जब मंशूर नहीं माना तो पार्टी से अलग हो गए ऑटोमेटिकली निकालने की क्या जरूरत थी? उन्होंने भी वैसी वायलेशन की थी जैसे डिप्टी मेयर साहब ने की थी। जी वही ना, जब उसने वो पार्टी का हुक्म नहीं माना, पार्टी के वो अधिकार पर नहीं चला, तो जाहिर सी बात है कि वो उसके खिलाफ एक्शन जो लेना था वो तो पहले ही ले गई है। वो तो 4 लोगों के खिलाफ आपने ना, मजीद 4 जो हैं जिनमें से डिप्टी मेयर साहब भी शामिल हैं, उनके खिलाफ कोई बयान नहीं आया, नहीं बयान, देखिए मैं आपको बताऊंगा वो उनके खिलाफ क्या बयान आएगा, वो तो पहले से ही हमसे अलग हैं, वो उन्होंने तो पहले ही हमसे अलहदगी इख्तियार की है। पिछले साल मई के महीने में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा ज्वाइन किया। देखिए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, वो बात सही है। उसके बाद अगर उन्होंने वही रिपीट किया जो उन्होंने पहले किया था, तो लिहाजा मैं कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि वो पार्टी से निकल गए हैं, तो कौन से डेट को, कब, कौन से महीने में? ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि वो कब निकले हुए हैं, कब निकाले गए हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं इतना बताऊंगा कि वो पार्टी से अलहदा हो गए हैं और पार्टी से उनका अब कोई ताल्लुक नहीं रहा है। अब कहते हैं कि उनका ताल्लुक खानियार हल्के इंतखाब से था और इस वजह से उन्हें ये एमनेस्टी दी गई है कि चलो आप बिल्कुल खिलाफ रहिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप जो ये कह रहे हैं, आप बहुत ही इसको पिन पॉइंट करते हैं। आप ये कहिए कि जब उन्होंने ये कहा है कि जब उन्होंने पार्टी के जो पार्टी का मानना था, पार्टी से अलहदा इख्तियार किया अपना मौक़िफ़, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे साथ नहीं। मतलब आप कहते हैं कि वो जो मजीद 4 है उनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं है, या आप हमारे साथ अभी बात कर रहे हैं? नहीं, जिन 4 जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ आप कहते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से तब कहा था वो इस तरह के इलेक्शन, चाहे पंचायत इलेक्शन हो या लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, म्युनिसिपल इलेक्शन हो, आपने बाइकआउट किया था। लेकिन जिन लोगों ने लड़ा था उनको किस बुनियाद पर फिर आपने? देखिए, मैं आपको बताऊंगा जनरली हमारा ये मौक़िफ़ था उस वक्त, हमने ये किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ना पंचायत इलेक्शन में ना बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हमने तो क्लियर स्टैंड लिया था। अब चूंकि कुछ लोग जो हमारे सफ़ों में मौजूद थे और उन्होंने अपने से इलेक्शन में हिस्सा ले लिया और फिर अपनी गलती का एतराफ़ करने के बाद वो फिर से पार्टी में आ गए। जब वो पार्टी में आ गए तो जाहिर सी बात है कि वो उन पर हमारे वो पार्टी का जो मौक़िफ़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका मौक़िफ़ सुन लिया और उनके मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। देखिए इतना ही है कि जब उन्होंने मान लिया था कि हम वापस आ गए हैं और वापस आ गए हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद वापस आ गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको बिल्कुल खुले दिल से उनका वेलकम। यस, मैं मानता हूँ उसमें क्या शक है। वो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ही बयानिए का उन्होंने खिलाफवर्जी दी कि फिर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मानती है कि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े उनका फैसला सही था? नहीं, उनका ये फैसला सही नहीं था, क्योंकि वो पार्टी के उसूलों के तहत पार्टी के हिदायत के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन तो नहीं लड़ा। उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा वो उसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं था।
मोहम्मद अकबर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट जवाब दे रहे थे कि 4 प्यारे हैं या 4 पापी हैं। क्या बात है, जवाब मोहम्मद अकबर लोन दे रहे थे, लेकिन बात निकल के सागर के खीमे तक जरूर पहुंचती है, क्योंकि खानियार का हल्का इंतखाब और अली मोहम्मद सागर का हल्का इंतखाब। और अली मोहम्मद सागर के हवाले से आपको खबर बताते चले कि बड़ा वक्त जेल में गुजारने के बाद, यानी 5 अगस्त की तारीख के बाद आज वो घर भी पहुंचे। मुअज़्ज़ज़ अदालत के अहकामात के बाद उन्हें रिहा भी किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों में ये बड़ी खबर मानी जाती है, खुशी की खबर भी मानी जाती है। लेकिन 5 अगस्त की तारीख और 5 अगस्त की तारीख को कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, झंडा भी बदला है। लेकिन आज 5 अगस्त के बाद, यानी बड़े दिनों बाद, श्रीनगर के लाल चौक में हमने एक शख्स को भी देखा जो कश्मीर का अपना वो पुराना झंडा उठाए हुए था, नारेबाजी भी कर रहा था। लेकिन पुलिस, जब तक वो बाहर पूरी तरह से निकलता, पुलिस आ पहुंची थी और इस शख्स को फौरन गिरफ्तार किया गया, सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। बाद में मालूम हुआ कि ये पीडीपी का सीनियर लीडर इंजीनियर नजीर यत्तू है और उसने श्रीनगर के लाल चौक में वो पुराना कश्मीर का झंडा आज लहराने की कोशिश की थी, ताहम पुलिस ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। ये एक पहलू श्रीनगर की सियासत का, लेकिन कॉरपोरेशन की सियासत वो आज भी जारी रही। और हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सारे मामलात आज भी देखने को मिले। हंदवाड़ा की म्यूनिसिपल काउंसिल के इंतखाबात हुए तो पहले हैं, लेकिन पिछले हफ्ते वहां पे बिगाड़ हुआ था, बवाल हुआ था और उस दौरान साहब जो वहां के कॉर्पोरेटर हैं, काउंसलर हैं, उनको बर्खास्त भी किया गया था पार्टी की तरफ से। वो चूंकि उनका ताल्लुक पीपल्स कॉन्फ्रेंस से था तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया था और यूं मसरूर बांडे तब पार्टी ने उनको ओहदे से हटाया था। तब आज दोबारा जब इलेक्शन हुए तो मसरूर बांडे दोबारा कामयाब भी हुए। 7 और 6 वोट, यानी 7 मसरूर को मिले। उनके मद मुकाबिल अब्दुल मजीद पंडित जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, उन्हें 6 वोट मिले। 13 में से 7 जिसने जीता वो सिकंदर, और यूं मसरूर बांडे हंदवाड़ा में आज सिकंदर दोबारा बना। जो खुशी उनके चेहरे पे थी, उनके साथियों पे थी, और ये खुशी और उनके साथियों और उनके चेहरे पे खुशी दूर से ही साफ दिखाई दे रही थी। ये सियासत का पहलू, लेकिन हमारे यहाँ और भी पहलू हैं। हम आपको ये झोंपड़ा दिखाते हैं, ये गरीब का झोंपड़ा है, ताहम इस गरीब की सुनवाई 10 साल से भी नहीं हो रही है। बड़े किसी का होता, पहुंच वाले का होता तो कब की सुनवाई होती। लेकिन ये पट्टन के इलाके का, गोशबुक पट्टन के इलाके का ये झोंपड़े वाला खुद अपनी कहानी यूं बयान करता है कि 10 साल से दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूँ। IAY के तहत सरकार ने उनके लिए बताया था कि उसको रकूमात दी जाएंगी ताकि अपना वो झोंपड़ा, टीन का ये शेड ठीक कर सके। लेकिन सरकार के या अहदेदार, किसी भी अहदेदार के कानून पे यूं भी नहीं रहेंगी है और यूं इस शख्स को आज भी इसी झोंपड़े में शब रोज गुजारने पड़ते हैं। मे 2013 मज वोत मे लिस्ट तो अमो कोड़ तामील इरशाद IAY पत गोस बह तौर तो तथ मंगिक 20,000 रुपये तो मे न ताकत कहीं बस गरीब शख्स बस मजूर करान। तुम गोवा जहाँ BDO ऑफिस गोवा तुम समखवा तुम अफसर तथि तुम क्या तथ बारस मज वन? तम दपान मुन त्रो ना कहें। बस गयास तौर वारिया लट मगर तमन त्रो मुनुक तान कहें। तत गरीबन ठेलन गिंदा, तत गरीबन दिवान ब्रोह कुन यन कहें। ये पट्टन की बात, लेकिन कुपवाड़ा भी चलते हैं। कुपवाड़ा की जेल में आज इंतजामिया पहुंची हुई थी। यहाँ अंदरूनी हालात वाक़ात पर, जेल हालात वाक़ात पर नजर रखी गई थी। ताहम यहाँ जेल में रहने वाले या जेल में कैदियों को ट्रेनिंग देने के हवाले से भी इकदाम उठाए गए और जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने यहाँ जेल में लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग देने की बात करते हुए बताया कि उनके लिए खुसूसी इकदाम उठाए जाएंगे। यहाँ कैदी भी इस मामले को लेकर खुश थे और इंतजामिया भी खुश थी और ये उम्मीद लगाए हुए थी कि आने वाले वक्त में जब ये लोग यहाँ से निकलेंगे तो मुआशरे के एक अच्छे शहरी होने का सबूत भी देंगे। तो आज के दिन में यहाँ पे कुछ स्किल डेवलपमेंट का एक जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, एक जन शिक्षा संस्थान है, एक NGO, तो वो स्टार्ट करने जा रही है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने 100 जो बेड्स है, जो बेडिंग जिसमें ये रज़ाई है, मैट्रिसेस वगैरह पिलोज, तो वो उनको हैंड ओवर किए। ये कुपवाड़ा की खबर, लेकिन क्यूम वानी के नाम से आप जरूर वाकिफ होंगे। मुलाजिम लीडर रहे हैं, मुलाजिम के उसके बाद सियासत में भी आए, PDP में शमूलियत भी इख्तियार की, टिकट पर PDP की टिकट पर पार्लिमानी इंतखाब भी लड़ा।
इंतखाबात में हार भी हुई, उसके बाद 5 अगस्त की तारीख के बाद जेल भी गए, जेल से रिहाई के बाद सियासत से किनारा कशी भी इख्तियार की और आज उन्होंने जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम नामी नई NGO नई तंजीम बनाने का ऐलान करते हुए बताया कि आवाम की खिदमत वो जारी रखेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस NGO के इस सिविल सोसाइटी के खत-ओ-खाल भी बयान करेंगे। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि आज श्रीनगर में सवाल कई उठ रहे थे और सवाल ये था कि ट्रैफिक है नहीं, जहाँ कहीं ऑटो चलता है, सोमो चलता है, किराया तिगना और चुगना लिया जाता है। यूँ कहें तो श्रीनगर में सोमो वाला इन दिनों स्टाफ का जहाँ 10 रुपये रेट हुआ करता था अब 40 लिया करता है। ताहम श्रीनगर में आज इंतजामिया ने इसी मामलात को लेकर सोमो ड्राइवरों और दूसरे ट्रांसपोर्टरों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्रेनिंग कैंप मुनक्कद किया, जिस दौरान उन्हें ट्रेनिंग देते हुए ये भी बताया गया कि अब सवारी तो आधी गाड़ी में रहेगी लेकिन किराया डबल दिया जाएगा। सवारी की बात तो साथ साथ में बात मार्केट की भी आ जाती है और मार्केट की सूरत में हम देख रहे हैं लगातार कि लोग बड़ी तौर एहतियात से कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उन पर पूरी तरह से अमल दरामद भी करते हैं और सरकार की कायदे और कानून पर अमल दरामद करते हुए खुद भी बचते हैं, दूसरों को बचाने की तरगीब भी देते हैं। और हमारे साथी इरफान फाजिल श्रीनगर के मशहूर मार्केट गोनी खान मार्केट में भी गए हुए थे और यहाँ पे उन्होंने ताजरों से भी बात की, हालात पर भी नजर रखी और दुकानदारों से लेके आम लोगों तक भी बात करते हुए जाना परखा और समझने की कोशिश की कि कैसे हैं ताजरों के हालात वाक़ात। हमें पहले दिन बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन रोज़ रोज़ एक दो तीन दिन के बाद हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामलात है या गाइडलाइन जो एडवाइजरीज हमें फॉलो करने के लिए कहा गया है, हम कोशिश करते हैं कि उसमें पूरी तरह हम खरे उतरें और साथ ही में जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं वो भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो गाइडलाइंस एडवाइजरीज है वो फॉलो करें, क्योंकि जो गाइडलाइंस हमें दी गई है कि उसमें ऑल्टरनेट डेज है, एक दिन हमारी मार्केट बंद रहती है, दूसरे दिन खुली रहती है। तो उससे क्या होता है कि एक तो भीड़ भी कम है और कस्टमर भी बड़ा सोच समझ के जो परचेजिंग उसे करनी होती है वो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, अगर कस्टमर विदाउट मास्क आपकी शॉप पर आता है तो कैसा व्यवहार या कैसा बिहेवियर आपका रहता है, कैसी डीलिंग रहती है? जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारे कुछ कस्टमर्स है अवेयर नहीं है इन चीज़ों के कि ये क्या है आगे, तो उसके बाद क्या होता है कि हमने यहाँ पर अपने जो भाई है जो शॉपकीपर्स हैं हमने एक्स्ट्रा मास्क यहाँ पे लगा रखी है, तो हम उनको पहले ही वो प्रोवाइड करते हैं। हमने दुकानों पे इस खास बात का खास ख्याल रखा कि सैनिटाइज़र रहे, हमने इस बात का खास ख्याल रखा कि जो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और मास्क खासकर जो आपने कहा कि कस्टमर नहीं हो तो हम उसको मास्क प्रोवाइड करते हैं। ताजरों के हालात व वाक़ात परखे हैं मेरे साथी इरफान फाजिल ने, लेकिन नाजरीन आपको बताते चलें कि ताजिर बेचारे की कमर टूटी हुई है, ट्रेडर की कमर जहां टूटी है